Assalamu alaikum dear students, this is Tahir Raza and now we are going to start this segment of ours, and that is the section of the poem. My first concern is to make you familiarize with the textbook that right you have in your homes, and you have to go through that textbook. So I have discussed earlier short stories, and we have a very good lecture about short stories, but right now we are talking about the section of the poem, how we can deal with the poem, what are the requirements while I'm reading a poem, and what I have to focus in a poem by examinational point of view, and the rest of the understanding, what I have to understand in a poem. एक नज़म में, एक पोएम में मुझे कैसे उसको तैयार करना है और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें जो मेरे लिए आगे चल के अहमियत की हामिल हैं और उसमें मेरा पेपर बनने जा रहा है. First of all, I have divided the language into two parts. First of all, you have to understand the types of the language. I have written here figures of speech and parts of speech. Language को दो हिस्सों में dissect कर दिया गया है. One section is the figures of speech, in where we have to focus on the poetic language. The poetic language that is consisted of simile, metaphor, personification and imagery. I repeat it: simile, metaphor, personification and imagery. These terms are used when we are dealing with a poem. एक पोएम में मुझे फोकस रखना होता है उसके सिमिले पे, उसके मेटाफर पे, और अगर यूज हुई है वहाँ पे उसकी लिटरेरी टर्म्स, दैट इज personification. In metric level, you just crammed the summary of a poem and you just got the idea of the main idea of the poem, and you wrote that main idea on the paper, and you are having a good mood to get good numbers when your examination will be discussed at the end. But how in FSC level I can do my self-study while I'm dealing with the segment of the poem? Poem के साथ मैंने कैसे deal करना है? First of all, let's talk further about the poem. Examinational point of view, we have first year 8 numbers from the section of the short story. 4 सवाल पूछे जाएंगे आपसे, आपने उनका जवाब देना है जो कि 8 नंबर का होगा. Then you have to write a thoroughly new technique in FSC, which is reference to context and explanation. ये 9th 10th में भी थी, but there you didn't give any focus. You just prepared the summary of that poem, okay? But now here you have to compile this segment, which is reference to context and explanation. मैं इसको आपके साथ ही अभी डील करूंगा, लेकिन उससे पहले लेट्स रीड अ पोएम. एक पोएम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक पूरी पोएम पढ़ानी है और उस पोएम की अंडरस्टैंडिंग सिखानी है, और अंडरस्टैंडिंग के बाद माई एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू वुड बी देयर दैट आई हैव टू फोकस ओवर देयर. ओके, I have selected 11th poem, which is leisure, fursat. Let's read the poem. What is this life full of cares? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. No time to see in broad daylight. If you have a textbook in front of you, you can read these lines with me, these verses with me, my son. Please have a focus. And stare as long as sheep or cows. No time to see in broad daylight. Streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet, how they can dance. No time to wait
till her mouth can, enrich that while her eyes began. A poor life, this if the poet, he is giving the emphasis if. कंडीशनल सेंटेंस बना रहा है पोएट इस पे आके, अगर ऐसी जिंदगी है. A poor life this if, full of cares, we have no time to stand and stare. So this is the poem that you have read. What you got after reading that poem? To whom the poet is talking about? What is the main theme of the poem? I don't know. I don't have any idea. इससे पहले मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी की ही नहीं है. That is the reason. Let's do this activity. I have written a statement over here. How to understand a poem. कैसे एक पोएम को अंडरस्टैंड करना है, उसको पहले मैंने समझना है. क्या समझना है मुझे? What I have to understand in that poem. I have written just one question with different names. It is just one question and it is consisted of different names. आपको इसके names different way में मिल जाएंगे, but it will be a single question. It will be a single question that can guide you while you are dealing with the poem. How? Let's read the statements. Theme of the poem. If you have any helping book in your homes, you can find this statement, theme of the poem. Just go in the segment of the poem and just read any poem and then try to find out this kind of statement over there. Theme of the poem. Got it? It's also called central idea of the poem. Okay. The next one is context of the poem and main idea of the poem, summary of the poem, and at the last I've written critical appreciation of the poem. You can see there are 6 or 5 names of just one question. सवाल एक है, but it has different names and different structure. कहेंगे इसको हम क्या? You can say मरकज़ी ख्याल, main idea. Main idea क्या है इस पोएम का? You have the themes at the end of that poem. Just read that theme. There you will get a very simple idea कि ये पोएम किसके बारे में बात कर रही है, कौन सी चीज है जिसके बारे में शायर बोल रहा है, पोएट बात कर रहा है, वो किसी एक जगह पे जाके अपना एक फोकस डिलीवर कर रहा है. And what is that focus? That is Layar. Okay, Layar is about modern man. Who is modern man? You are the modern man. We are the modern man. We are living in this age. From dawn till dusk, we remain engaged in rat race of getting more and more and more. सुबह से शाम तक आज के इंसान की एक लड़ाई चलती रहती है जिसमें वो कुछ ना कुछ हासिल करने के चक्कर में पड़ा हुआ है. लेकिन उसमें हुआ उसके साथ क्या है, उसकी लाइफ मॉडर्न मैन की बिजी हो गई है. इट हैज़ बिकम बिजी लाइफ. इट हैज़ बिकम आ मटेरियल लाइफ, गेटिंग मोर एंड मोर. क्यों कर रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक दौड़ लगी हुई है इंसान की. किस लिए लगी हुई है? क्या लेना चाहता है? ज़ाहिरी बात है, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना चाहता है. फॉर दैट ही हैज़ टू रन लाइक अ रैट ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर. ओके, सो लॉस ऑफ एस्थेटिक सेंस. यू कैन सी आज के इंसान को जिम्मेदारियां तो बहुत हैं उसके पास निभाने को, बट ही डजंट हैव द टाइम टू वेट and see the natural beauty around him because he is engrossed in the daily activities of life. He is very busy in his routine life. उसको तो पता ही नहीं है अगर बारिश हो रही है तो उस बारिश में फूल कैसे खिल रहे हैं. That is the reason इसमें जगह जगह शायर ने इंसानों को जानवरों से भी कंपेयर किया है. अभी मैं आपके सामने इसकी एक्सप्लेनेशन रखूंगा. But first of all, let's see the context of the poem. So it's a material life. It's a loss of aesthetic sense, ज़ौक़े जमालियात, चीज़ों को खूबसूरत और बदसूरत बयान करने के लिए जो हिस्स होती है, दैट इज़ कॉल्ड योर aesthetic sense.
स्पिरिचुअल बैरनेस, रूहानी तौर पर भी वो बंजर हो गया है, ख़त्म हो गया है। उसके पास अब ज़िंदगी में कुछ और नहीं है सिवाय उस पैसे के पीछे भागने में, उस अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने में, और इसके अलावा अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को और मज़ीद वो सख्त करता जा रहा है। क्या करना चाहता है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट जस्ट द मनी टू फुलफिल द वर्ल्डली एक्टिविटीज़ एंड द वर्ल्डली डिज़ायर्स। फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट रीज़न ही हैज़ बिकम अ मटेरियलिस्टिक पर्सन। ही हैज़ बिकम एक ऐसा इंसान बन गया है जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, और वो सुबह से शाम तक उसकी रूटीन चलती रहती है। आज की रूटीन की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो हम सब लॉकडाउन हैं, लेकिन आम इंसान कैसे चलता है और सुबह से लेकर शाम तक वो क्या क्या कुछ करने के चक्कर में पड़ा रहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन। ओके, सो लेट्स एक्सप्लेन दिस पोएम। व्हाट इज दिस लाइफ? क्या है ये जिंदगी? फुल ऑफ केयर्स, परेशानियों से भरी पड़ी है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास रुक जाने का, स्टेयर गौर और फिक्र करना, किसी चीज़ की निशानदही करने के लिए एफर्ट करना, गौर करना है ही नहीं है। नो टाइम टू स्टैंड, नहीं है हमारे पास वक्त खड़ा हो जाने का, रुक जाने का, beneath द बव्स, शाखों के नीचे, एंड स्टेयर, गौर फिक्र करने का, एज लॉन्ग एज शीप और काउस, जितनी देर तक भेड़े और भैंसें करती हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, इस चमकते हुए दिन में हमारे पास देखने का वक्त नहीं है। चमकता हुआ दिन, कैसे गॉड की जो नेचर है, जो खूबसूरती है, वो कैसे बिखरी पड़ी है इर्द गिर्द उसके, उसको तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट, कैसे रात को जैसे आसमान सितारों से भर जाता है, वैसे नदियाँ भी जो हैं वो उसके अक्स के साथ, उसके रिफ्लेक्शन के साथ वो भी भर जाती हैं। नाउ यू कैन सी द रोमांटिक टच दैट पोएट हैज़ गिवन इन दीज स्टांजास। हाउ इज डीलिंग विद द केयर्स, with the steering, with the bows and the animals. And now at this point, what the poet is saying, the poet compares natural beauty with a dancing woman who is dancing in front of the audience, but the audience, that the modern man, he is so engrossed in the daily activities that he does not have even a single minute, even a single glimpse to look at that person, that lady who is dancing in front of him in the form of a dancing woman. That is the reason poet has used over here personification, tajseem nigari. उसने एक नेचुरल चीज को, नेचुरल ब्यूटी को, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसने क्या कर दिया है, उसको एक खातून की शक्ल में ला खड़ा कर दिया है, यानी उसको एक फिजिकल अपीयरेंस दे दी है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा, लेकिन एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? द थिंग विच डज नॉट हैव अ फिजिकल अपीयरेंस, वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। अब उसने क्या किया है? खूबसूरती को एक नाचती हुई औरत की शक्ल में खड़ा कर दिया है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट, यू कैन सी हर फीट। अब ब्यूटी के फीट तो बेटा होते नहीं है, फीट तो वो तभी होंगे जब वो किसी फिजिकल फॉर्म में आकर खड़ी हो जाएगी, जब वो किसी चीज़ में, मुजस्सम में मुझे नज़र आनी शुरू हो जाएगी, देन वो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस में आ गई है, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़। एंड वॉच हर फीट, ये देखने के लिए कैसे उसके पाँव जो हैं, हाउ दे कैन डांस, वो थिरकते हैं, वो थिरक सकते हैं, वो कैसे नाचती फिर रही है हमारे इर्द गिर्द, वो खूबसूरती, वो नेचुरल ब्यूटी इन द फॉर्म ऑफ अ डांसिंग वुमन। लेकिन चूंकि मॉडर्न मैन जो है वो अपनी इस रोजमर्रा की जिंदगी में इतना महव हो गया है, ही डजंट हैव टू हैव अ टाइम टू सी द स्माइलिंग लिप्स ऑफ दैट लेडी। ओके, नो टाइम टू वेट, रुक जाने का, खड़ा हो जाने का भी वक्त नहीं है उसके पास। Till her mouth can enrich that smile, वो जो सज गया था, वो जो खूबसूरत हो गया था, वो जो भर गया था उसका चेहरा उस स्माइल के साथ, उस मुस्कुराहट के साथ। her eyes began, जो कि उसकी आंखों से शुरू हुई और उसके होंठों तक पहुंची। अब अगर ऐसी जिंदगी है, किसकी जिंदगी है? दिस इज द लाइफ ऑफ अ मॉडर्न मैन, रोजमर्रा का इंसान, आज का इंसान। आज के इंसान के बारे में पोएट बहुत मुख्तसर वर्सेस में उसकी कैटेगरी को डिफाइन करता जा रहा है, और अगर कहता है एक ऐसी जिंदगी है, अ पुअर लाइफ दिस इफ, अगर ये एक ऐसी जिंदगी है फुल ऑफ केयर्स, परेशानियों से भरी पड़ी है,
तो फिर ये एक गरीब ज़िंदगी है. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे पास रुक जाने का और गौर व फिक्र करने का वक्त नहीं है. नाउ दैट इज़ द थीम ऑफ द पोएम. दैट इज़ द थीम ऑफ द पोएम. You read these statements and now you come to know, okay, this is the main idea of the poem, and poet wants to focus on a single thought, just like a composition in verse having a highly developed thought. एक highly developed thought होगा वो, एक ऐसा thought जिसके उस पूरे thought के ऊपर लेकर poem ने अपनी बातों को करना है, अपनी एक्सप्लेनेशन करनी है, लेकिन उसके साथ साथ वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेगा. यू कैन सी इंसानों को उसने किसके साथ कंपेयर कर दिया है? जानवरों के साथ कंपेयर कर दिया उसने. ही हैज कंपेयर्ड ह्यूमंस विद द एनिमल्स. ही सेज दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस. इंसानों से बेहतर कौन है? जानवर बेहतर है उसके. क्यों? वो नेचर के ज़्यादा करीब है. लेकिन मॉडर्न मैन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वजह से, अपनी भागम भाग ज़िंदगी की वजह से इतना आगे निकल गया है, इतना आगे चला गया है कि उसके पास तो थोड़ा सा वक्त करने का भी, रुकने का भी, सांस लेने का भी उसके पास वक्त नहीं है. मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ. ये जब उसके बाद ज़िंदगी चलती है तो वो किस रफ्तार से चलती है, ये उसके ऊपर पोएट का एक लेमेंट है, एक मातम है उसके ऊपर शायर का कि आज दुनिया ये कर रही है. ओके, सो after the theme, the critical appreciation and the summary of the poem, you will understand that, okay, this poem is about the modern man, and the literary terms that has been used, that is personification, tajseem nigari, जिस पे मैंने आपसे बात कर ली. अब उसके बाद मुझे क्या करना? Now what I have to do? What is my next step to understand after understanding the poem? What I shall be doing with this structure? Okay, first of all, you have to find out the short questions of that poem. After that, or when you will come to us, inshallah, we shall tell you the additional questions of different poems. Short questions would be there of 8 numbers, and the very important thing that has come. You haven't done this activity before in 9th level or 10th level. 9th 10th पे आपने इस activity को बिल्कुल भी नहीं किया. And that is the point that you must understand how you can elaborate this kind of thing, and you can get 1, 2, 3, 4, 5 numbers easily. Let's see. I've written reference in Urdu. आप ये पहले भी कर चुके हैं जब आपने उर्दू का पेपर डील किया था. वहाँ पर शेर दिया था, अशार दिए थे. आपने क्या करना था? आपने उसको उर्दू की मदद से समझ लें, हवाला मतन. Now this is the reference. Reference, it is of 1 number. What you have to do in the reference, you have to write in such a way, just mention from where these lines have been taken, just like this. These lines have been taken from the poem. You have to write the name of the poem. आपको उस नज़म का नाम लिखना है, आपको उसको बयान करना है कि ये अगर इसमें से कोई स्टांजा लिया गया है इस पोएम में से, तो वो किसने लिखी है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द पोएम लेजर, रिटन बाय W.H. Davies, William Henry Davies. Now you got the 1 number. Only doing this activity, only by simple activity, you got the 1 number. Now what you have to do at the next step? Reference is there. After that, context of the poem. We can say मरकज़ी ख़याल. So मरकज़ी ख़याल के ऊपर मैंने आपसे ये बातें की हैं सारी. The main idea of the poem. Poem किस चीज़ के बारे में है? What the poem is telling to the audience. What the poet has given the main idea in the poem. Okay? So if you understand that, you have to write only the context of that poem. It is also of 1 number. After that, the most important work you have to do. Now this is called, for example, explanation. It is of 3 numbers. You have to deal with the 3 numbers. My son, in different stanza there is a different thought by the poet. If you see this stanza, here is the use of personification. The poet has used personification.
उसने क्या किया, उसने खूबसूरती को एक नाचती हुई औरत की शक्ल में लाके खड़ा कर दिया आपके सामने. नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन योर एक्सप्लेनेशन. इफ यू डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट, if you memorize this concept, then you will be able to deliver that in explanation. What is personification? What is personification? Personification means to present an abstract thing in a concrete form. किसी गैर मादी चीज को मादी चीज में बयान करना. मिसाल, दोबारा इसकी तरफ आ रहा हूं. ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है, एग्जिस्ट नहीं करती है. कोई कह नहीं सकता मेरे पास आधा किलो खूबसूरती है, तुम्हारे पास किलो खूबसूरती है. वी कांट से लाइक दैट. वी कैन जस्ट ऑब्जर्व द ब्यूटी. सो ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट एंड इट हैज कम इन द फॉर्म ऑफ अ वुमन. खातून की शक्ल में आ गई है. नाउ हियर द पोएट हैज यूज्ड पर्सोनिफिकेशन. उसने एक गैर मादी चीज को मादी चीज में यानी फिजिकल अपीयरेंस में ला खड़ा किया. एक और डेफिनेशन होती है पर्सोनिफिकेशन की, टू एट्रीब्यूट द क्वालिटीज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स टू द लिविंग थिंग्स. ओके. सेकेंड पोएम आपकी जो है द नाइट मेल, उसमें भी पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है. वो अगर नॉन लिविंग थिंग है, एक ट्रेन है, उसको उसने एक खातून की शक्ल में, एक नाइट मेल की शक्ल में जो कि अपने शोल्डर्स पे फन फैलाते हुए चली आ रही है, उसका उसने रेफरेंस दिया है. वहां पर भी पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया. नाउ यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द लिटरेरी टर्म्स व्हिच आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेगमेंट ऑफ द पोएम. ग्रामर, it is mostly used in prose. We say nasr, sabak, asbaq. Here you will be having inshallah a great deal of knowledge on the grammar from me in the coming lectures. But first of all, here just we have to focus on the different things. You have read them in your 9th level and 10th level. So reference to context and explanation, it is of 5 number, and short questions are of 8 number. Understanding of the poem, you have to read these kinds of sentence statements or questions. और आपके पास कोई भी helping book है, if you have any helping book in your home, कल भी मैंने आपसे कहा, अब भी कहा मैंने, आपको वहां से मदद लेनी है, रास्ता तय करना है ताकि आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकें. और अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी में कामयाब हो जाते हैं, आप एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं, एक पोएम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यही हमारा काम है आपको इस वक्त घर बैठे कि हम आपको अपनी सेल्फ स्टडी करना सिखाएं. और सेल्फ स्टडी की मदद से आप कैसे अपना थोड़ा थोड़ा काम करते करते इंशाल्लाह 1-1.5 माह बाद देखेंगे, जब आप वापस आएंगे हमारे पास इंशाल्लाह, तो फिर आप देखेंगे ये वाली चीज़ें तो मैं सारी पहले कर आया हूँ. इसके कर लेने से, क्योंकि बाद में भी आपको ये करना ही है. अगर आप ये नहीं करते, आप स्किप करते हैं, फिर उसको आपको बाद में करना पड़ेगा जाके. अब आप तब करेंगे या अब करेंगे, फिर यही सवाल पैदा होता है, टू बी और नॉट टू बी. दैट इज द क्वेश्चन. या तो कुछ करना है या कुछ नहीं करना है. सवाल ये है. सो माय सन, टू डील विद द पोएम, दीज आर द टेक्निक्स एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस, एंड इंशाल्लाह we shall prepare it beautifully inshallah. So thank you very much. Allah Hafiz.